Hello students, how are you? Good morning, how are you all? Welcome to my new channel, that is your Compound Chronicles, and this is a practical class. So in the previous video we have seen and we have done one experiment, that was titration of Mohr salt with KMnO4. Now today we will start the new second type of the titration, and that is titration 2, and this titration would be between oxalic acid and KMnO4, yani potassium permanganate. Okay, so I hope you enjoyed the previous video. If you have any problem, any kind of the doubt, you can write the comments on my channel. Okay, so now come back. So today's aim is, this is your aim 2. We are starting the second one, that is your titration number 2. Titration number 2. Okay. So in that, you know that again two type of the solution will be used. One will be your titrate and second will be your titrant. Understood? The titrant will become same, and that will be your KMnO4 potassium permanganate, and titrate will be your oxalic acid. Oxalic acid. I hope you all understood. So the titration will be between these two, titrate and the titrant. So titrant will be same KMnO4 and titrate will be your oxalic acid. Now it is different from the previous video. Okay, there are certain changes in the titration जो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं इसके ऊपर. ठीक है, एम क्या है हमारा? एम है बेटा prepare M/40 solution. So today M/40 solution will be prepared. Okay, of oxalic acid. Oxalic acid in 100 milliliter. Then by using the solution comma determine the molarity and strength of STRNGT, strength of potassium permanganate solution, KMnO4 solution. Understood? So again today we have the two tasks. The first one is a prepare M/40 solution of oxalic acid, and the second one will be your determination of the molarity and the strength of the given KMnO4 or potassium permanganate solution. Okay students, so come again. So according to the previous video we will follow the same one. The first thing is that your compound is your oxalic acid, and this thing is the molarity of oxalic acid. It is given how much? 1/40 capital M. I told you in the previous video that, but instead of 1/40 it can be 1/30, 1/35, 1/45. जो तुम्हारे टीचर दे, जो तुम्हारे एग्जामिनर दे, उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा. अपन 1/40 मोल पर लीटर के हिसाब से करेंगे. ठीक है, तो मोलारिटी कितनी दे रखी है बेटा इसकी? दैट विल बी योर 1/40 कैपिटल M मोल पर लीटर. Understood? Now the second thing is the formula. So formula, students get confused in the formula. Why is it so? Because we have to take the hydrated oxalic acid. ज्यादातर बच्चे पता है क्या करते हैं, वो ले लेते हैं इसका मोलर मास, सॉरी अपना COH, ये 2H2O नहीं लेते, जबकि आपको पूरा कंप्लीट लेना होता है इसका. ठीक है ना? सो टोटल आप कैलकुलेट कर लेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा? 120 अपन सेकेंड इसकी लाइन में बना देते हैं. ये फॉर्मूला हो गया. थर्ड वन इसका जो मोलर मास है, मोलर मास जो दे रखा है इसका ऑक्सैलिक एसिड का कैलकुलेट करना आता होगा बेटा आप लोगों को. कार्बन इज 12 into 2 24, then oxygen is 16 into 4 64 plus 2, then 18 into 2. The overall molar mass will be 126 ग्राम पर मोल. पहले वाले वीडियो में मैंने यही बताया था बेटा कि वन मॉलिक्यूल का मास जो रहेगा 126 U, और आपका 1 मोल का मास रहेगा, दैट विल बी द ग्राम मॉलिक्यूलर मास. दिस विल बी योर 126 ग्राम पर मोल. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? सो ये इसका हो गया आपका 126. बच्चे क्या करते हैं, अगर ये 2H2O नहीं लेंगे इसके अंदर, तो इसका मास 90 अराउंड आएगा. आप देख सकते हो 12 2 24 हो गया, और प्लस 16 4 64 प्लस 2 हो गया इसके अंदर. कितना? 4 और 4 8 और प्लस 2 10 हो गया. 6 7 8 9 90. सो ये 90 जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा बेटा. डोंट टेक 90 हियर. 90 की जगह पे आप लोगों को क्या लेना है? हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मोलर मास लेना है. अंडरस्टूड? चलिए अब अपन
जैसे कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हमारे पास ऐसा कोई एपरेटस नहीं है लेबोरेटरी के अंदर जो डायरेक्टली मोलारिटी को मेजरमेंट कर सके या मेजर कर सके। तो हमें इस मोलारिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इसका ग्राम के अंदर, कि इतने ग्राम हमें लेना है इतने लीटर वाटर के अंदर। तो वही वाला अपना सेम प्रोसेस रहेगा। कैसे करेंगे, हमें 4th नंबर पे निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। क्या रहेगा फॉर्मूला, मैंने बताया ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। क्या करेगा बेटा, मोलारिटी इंटू मोलर मास, मोलारिटी इंटू मोलर मास। तो व्हाट इज मोलारिटी हियर, 1/40। ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा दे रखा है। अब यहाँ पे भी मैंने लिखा है 1/40 और मोलर मास कितना दे रखा है 126। अंडरस्टूड। जब आप इसको पूरा काट देंगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 3.15 ग्राम पर मोल, सॉरी ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर, अंडरस्टूड। ये आ गया 3.15 ग्राम पर लीटर आ गया। इसका ओवरऑल कैंसिल करके देख लीजिए एक बार, वापस का वो निकाल के देख लेते हैं एक बार कि आंसर राइट है या रॉन्ग है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा वेट, 126 डिवाइडेड बाय 40 is equal to 3.15. Understood? The right answer is correct. So 3.15 ग्राम पर लीटर is the strength of the oxalic acid. हमें इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर के अंदर 3.15 ग्राम आपको ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व करना है। तो हमारी मोलारिटी कितनी हो जाएगी 1/40 मोल पर लीटर। अंडरस्टूड। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन में जो दे रखा है वो हमारा 100 ml में बनाने का। मैंने आपको कल मतलब पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि 100 ml की बजाय 250 ml भी दिया जा सकता है, 500 मिलीलीटर भी दे सकते हैं। यानी जो भी, अगर आपको वाई में पूछे बेटा 5000 ml में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो आपको यूनिटरी मेथड मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, आज उसी मेथड को फॉलो करेंगे। क्या करना है, यूनिटरी मेथड हमारा कि 1000 ml में जो रिक्वायरमेंट है हमारी ऑक्सैलिक एसिड की वो कितनी दे रखी है 3.15। ये तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया H2O, और ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सैलिक एसिड। अंडरस्टूड। सो in 1000 milliliter 3.15 ग्राम ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड इज रिक्वायर्ड। तो हमारे पास में कितना दे रखा है 100 ml में आपको देना पड़ेगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0.315 ग्राम। ये हमारे पास में ग्राम पर 100 मिलीलीटर, ये हमारी क्वांटिटी आ गई। यानी हमें जो आज का जो सोल्यूशन बनाना है उसमें हमें क्या करना है बेटा, 0.315 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड लेना है और उसको 100 मिलीलीटर पानी के अंदर, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है। डिस्टिल्ड वाटर को अपन डीआयोनाइज्ड वाटर भी बुलाते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट होता नहीं, इसलिए इसको अपन डीआयोनाइज्ड वाटर भी बोलते हैं और ये डिस्टिल्ड वाटर के नाम से भी बुलाते हैं इसके अंदर। सो टुडेज स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड इज 0.315 ग्राम पर 100 मिलीलीटर। ये हमें आज का टास्क कंप्लीट करना है। ठीक है, आई होप यू ऑल क्लियर विद दिस। अगर आपको 100 ml की बजाय 250 दिया जाए तो आप क्या लिखोगे, इन 1000 मिलीलीटर 3.15 ग्राम इज डिसॉल्व्ड, सो इन 250 मिलीलीटर व्हाट क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड, x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 250 के हिसाब से आपको इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सैलिक एसिड बनाने का तरीका हो गया। इसका कैलकुलेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। ठीक है, चलो अब सेकंड जो चीज आती है मैं इसके साइड में ही बना लेता हूं, उसके अंदर बिना इरेज किए हुए। कैसे इसका सोल्यूशन बनाना है, थोड़ा डिफरेंट टाइप है। जैसे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि आपने मोर सॉल्ट मेजरमेंट किया था, देन हम लोगों ने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला था, हाइड्रोलिसिस से उससे बचाया था। आज ऐसा वैसा कुछ नहीं, आज सोल्यूशन बनाने के बाद में कुछ चेंजेस करने हैं हम लोगों को। ठीक है, तो क्या चीज है बेटा, सबसे पहले हमें वॉच ग्लास लेनी है। वॉच ग्लास के अंदर हमें ऑक्सैलिक एसिड मेजर करना है। ये हो जाएगा आपका ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड कितना हो गया बच्चे, 0.315 ग्राम। अंडरस्टूड। ये इसको मेजरमेंट किससे करेंगे, हम लोग करेंगे पेन बैलेंस, इलेक्ट्रिक बैलेंस हमारे पास में जो था उसको अपन मेजर करेंगे। नाउ दिस मटेरियल, दिस सॉलिड ऑक्सैलिक एसिड विल बी ट्रांसफर्ड इन दी राउंड बॉटम फ्लास्क। ये क्या है, राउंड बॉटम, सॉरी, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है, इसमें आपको देखोगे एक लाइन दे रखी है, पूरा एक सर्कल दे रखा है, पूरा एक सर्कल होता है पूरा, क्योंकि पूरा आपका एकदम सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो सिलेंडर के चारों तरफ एक सर्कल होगा इसमें, तो सर्कुलर स्कार बनाएगा, एक पूरी लाइन नजर आ रही है इसके अंदर, सर्कुलर जो भी इसका प्रोसेस रहेगा इसमें। ठीक है,
अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें वही सेम प्रोसेस है, अपने फनल इंसर्ट करना है। फनल इंसर्ट करने के बाद में आप क्या करोगे, इस ऑक्जेलिक एसिड को इसमें सीधा ट्रांसफर कर देने का। जब आप इसको ट्रांसफर करोगे तो सारा ऑक्जेलिक एसिड अंदर आ गया। और जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को कि ऑक्जेलिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं, ये क्रिस्टल्स वॉच ग्लास पे भी चिपके रहेंगे, ये क्रिस्टल्स फनल के ऊपर भी चिपके रह सकते हैं। These crystals should be poured, these crystals should be there in the वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये सारा का सारा जितना भी क्रिस्टल है सारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में चले जाना चाहिए। तो उसको जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी आप लोगों को रिंस करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा। आपका जो ये फनल है इसको भी प्रॉपर्ली वॉश करना पड़ेगा, यानी रिंस करना पड़ेगा। सारे क्रिस्टल जो है वो आपके वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर चले जाने चाहिए। अगर पीछे कुछ क्रिस्टल बच गए तो आपकी मोलारिटी में फर्क पड़ जाएगा, मोलारिटी में फर्क पड़ेगा तो ओवरऑल रिजल्ट में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस है, हमने इसको अंदर डाल दिया और डाल करके यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे हाफ पानी से भर दीजिए पहले, और हाफ पानी से भरने के बाद में इसको प्रॉपर्ली इसको अच्छे से सोल्व करिए इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को। जब इसको सोल्व करेंगे या पूरा इसको रिवॉल्व करेंगे या हिलाएंगे पूरा अच्छे से, तो ये पूरा ऑक्जेलिक एसिड इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें कोई चेंजेस नजर आएंगे, द सोल्यूशन जो बन रहा है वो पूरा ट्रांसपेरेंट का ट्रांसपेरेंट रहेगा। बिफोर यूनिट डिसोल्यूशन एंड आफ्टर डिसोल्यूशन द कलर विल बी सेम। इज इट क्लियर? कोई हाइड्रोलिसिस किसी भी टाइप का कुछ भी नहीं होता है इसमें। देन आप इस फनल को बाहर निकाल देना बेटा, और निकालने के बाद में आपको यहां तक पानी से इसको भरना है। ठीक है, वही सेम बताया, आपकी आइज जो है वो यहां होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी आइज जो है इस जगह पे होनी चाहिए। अंडरस्टूड? ये पूरा आपकी आइज यहां होनी चाहिए, इसके सामने, इसके बिल्कुल सामने रहोगे तो क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि लोअर मेनिस्कस आया है या नहीं आया। अगर आपने ऊपर नीचे अगर देखा तो सोल्यूशन के अंदर क्वांटिटी में वेरिएशन आ जाएगा। उसको अपन पैरेलल एरर्स जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो वही सेम प्रॉब्लम रह सकती है। तो ये जो हमारा सोल्यूशन तैयार हुआ है वो कितना हुआ है बेटा, 100 मिलीलीटर में। अगर आपको टीचर 250 मिलीलीटर बोले यानी 250 मिलीलीटर बोले तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है वो कितना लेना पड़ेगा, 250 ml का। 500 ml बोले तो 500 ml का, 1 लीटर का बोले तो 1 लीटर का। तो वो डिपेंड करता है आपके पास में कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, या आपका जो एग्जामिनर है वो किस में बनाने के लिए बोल रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, ये पूरा आपका सोल्यूशन बनाने का तरीका हो गया, यानी 0.315 ग्राम मेजर करोगे, देन ट्रांसफर करोगे इसके अंदर, फिर पानी भरेंगे, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में इसको लोअर मेनिस्कस से आपको यहां पे भरना है और आपका ये सोल्यूशन तैयार हो गया। नाउ दिस इज कॉल्ड एज योर स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन, इसकी मोलारिटी, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी क्वांटिटी सब कुछ आप लोगों को पता है। और अब इसको यूज करते हुए हमें क्या करना है बेटा, हमें KMnO4 का मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको बना देते हैं। तो आ जाओ, तो अपने एपरेटिस की तरफ सारा देख लेते हैं कैसे क्या करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। 1 2 3 डन। ठीक है, कोई भी अगर आप लोगों को डाउट लग रहा हो या प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वहां पे कुछ भी अगर आपको अगर तकलीफ आ रही हो या कुछ भी अगर चेंजेस अगर आपको लग रहे हैं इसके अंदर, तो आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अपना आगे का प्रोसेस। सेम वॉच ग्लास है हमारे पास में, क्लीन कर लीजिए इसको अच्छे से। नाउ इसको स्विच ऑन कर दीजिए। सबसे पहले देख लीजिए ऑक्जेलिक एसिड हमारे पास में, ये हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड है। मोलर मास दे रखा है 126.07, हम 0.07 नहीं लेंगे इसमें। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा वॉच ग्लास। आई टोल्ड यू लाइक 19.75 तो वॉच ग्लास का मास है, हमें इसकी जरूरत नहीं, हमें इसको कर देना टेयर। ठीक है, अब हमें कितना लेना है, 0.15। अब ये जो मेजरमेंट है इसका आप देख सकते हो, पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल प्लेस तक ही मेजर करता है। तो हम इसको थोड़ा सा, जैसे 0.315 है ना, तो 31 के बाद में थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, 0.32 के आसपास अपन इसको ले लेंगे। ठीक है, ज्यादा हो गया थोड़ा। थ्री 1.5 लेना है इसमें, जरा ध्यान दीजिए। ये 0.31 हो गया और इसको 32 बना लेंगे। ठीक है, 0.32 अगर होगा तो
3.32 जस्ट अ सेकेंड, जस्ट ये 0.32 के आसपास अपना रिजल्ट आ गया. ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस. ठीक है, ये ज्यादा फर्क नहीं है, 0.05 का इतना कुछ वो मायने नहीं रखता है. अब हमें ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना है. पहले इसको रिंस कर दीजिए अच्छे से. ये रिंस कर दिया आप लोगों ने, ऑलरेडी रिंस था बट सेफ्टी के लिए आप लोग उसको रिंस करना है. इसको भी आप अच्छे से रिंस कर लीजिए. नाउ द नेक्स्ट टास्क इज, इसको डाल दीजिए इसमें और ये सारा का सारा इसमें खाली कर दीजिए. ठीक है, इसको कर देते हैं स्विच ऑफ. देयर इज नो नीड ऑफ दिस वन. उस साइड चलिए. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ये पूरा देखिए क्रिस्टल चिपके हुए इसके ऊपर, आप देख सकते हैं. इसमें अगर आपको देखना है तो ये क्रिस्टल देखिए पूरे प्रॉपर चिपके हुए. ये मोलारिटी चेंजेस हो सकती है इसमें. नाउ कर लीजिए अच्छे से. जो जो तरीका बताया था वही वाला, होल प्रोसेस विल बी यूज्ड. कर दिया. द सेम प्रोसेस, इंसर्ट द कॉर्क और इसको अच्छे से सोल्ड करिए. ज्यादा इसको ऐसे ऐसे शेक नहीं करनी तो ये टूट जाएगा. ऐसे बड़ा बड़ा वीक है ये वाला स्टेम इसका. हो गया, ये देखिए ये डिसॉल्व हो गया पूरा तरीके से इसमें. सो बिफोर डिसोल्यूशन एंड आफ्टर डिसोल्यूशन द कलर रिमेन सेम. द ट्रांसपेरेंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि कोई भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं होती है. ऑक्सैलिक एसिड थोड़ा सा वीक एसिड है तो डिसॉल्व तो हो जाएगा इसमें, लेकिन जो आयोनाइज होएगा वो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है आयोनाइजेशन के अंदर. ये मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया अच्छे से. चलिए नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा, वही पैरेलल एक्साइड हटाने के लिए. देखिए इसको आमने सामने बैठना है. एक सेकंड. Hello students, how are you? Good morning. How are you all? Welcome to my new channel, that is your Compound Chronicles, and this is a practical class. So in the previous video we have seen and we have done one experiment, that was titration of Mohr salt with KMnO4. Now today we will start the new second type of the titration, and that is titration 2, and this titration would be between oxalic acid and KMnO4, yani potassium permanganate. Okay, so I hope you enjoyed the previous video. If you have any problem, any kind of the doubt, you can write the comments on my channel. Okay, so now come back. So today's aim is, this is your aim 2. We are starting the second one, that is your titration number 2. Titration number 2. Okay. So in that, you know that again two type of the solution will be used. One will be your titrate and second will be your titrant. Understood? The titrant will become same, and that will be your KMnO4 potassium permanganate, and titrate will be your oxalic acid. Oxalic acid. I hope you all understood. So the titration will be between these two, titrate and the titrant. So titrant will be same KMnO4. and titrate will be your oxalic acid. Now it is different from the previous video. Okay, there are certain changes in the titration जो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं इसके ऊपर. ठीक है, एम क्या है हमारा? एम है बेटा prepare M/40 solution. So today M/40 solution will be prepared. Okay, of oxalic acid. Oxalic acid in 100 milliliter. Then by using the solution comma determine the molarity and strength of strength of potassium permanganate solution, KMnO4 solution. Understood? So again today we have the two tasks. The first one is a prepare M/40 solution of oxalic acid, and the second one will be your determination of the molarity and the strength of the given KMnO4 or potassium permanganate solution. Okay students, so come again. So according to the previous video we will follow the same one. The first thing is that
your compound is your oxalic acid, and this thing is molarity of oxalic acid. It is given how much? 1 upon 40 capital M. I told you in the previous video, but instead of 1 upon 40, it can be 1 upon 30, 1 upon 35, 1 upon 45. जो तुम्हारे टीचर दे, जो तुम्हारे एग्जामिनर दे, उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा. अपन 1/40 मोल पर लीटर के हिसाब से करेंगे. ठीक है, तो मोलारिटी कितनी दे रखी है बेटा इसकी? दैट विल बी योर 1 upon 40 capital M मोल पर लीटर. Understood? Now the second thing is the formula. So formula, students get confused in the formula. Why is it so? Because we have to take the hydrated oxalic acid. ज्यादातर बच्चे पता है क्या करते हैं, वो ले लेते हैं इसका मोलर मास, सॉरी अपना COH, ये 2H2O नहीं लेते, जबकि आपको पूरा कंप्लीट लेना होता है इसका. ठीक है ना? सो टोटल आप कैलकुलेट कर लेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा? 120 अपन सेकेंड इसकी लाइन में बना देते हैं इसको. ये फॉर्मूला हो गया. थर्ड वन इसका जो मोलर मास है, मोलर मास जो दे रखा है इसका ऑक्सैलिक एसिड का कैलकुलेट करना आता होगा बेटा आप लोगों को. कार्बन इज 12 into 2 24, then oxygen is 16 into 4 64 plus 2, then 18 into 2. The overall molar mass will be 126 ग्राम पर मोल. पहले वाले वीडियो में मैंने यही बताया था बेटा कि वन मॉलिक्यूल का मास जो रहेगा 126 U, और आपका 1 मोल का मास रहेगा, दैट विल बी द ग्राम मॉलिक्यूलर मास. दिस विल बी योर 126 ग्राम पर मोल. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? तो ये इसका हो गया आपका 126. बच्चे क्या करते हैं, अगर ये 2H2O नहीं लेंगे इसके अंदर, तो इसका मास 90 अराउंड आएगा. आप देख सकते हो 12 2 जा 24 हो गया, और प्लस 16 4 जा 64 प्लस 2 हो गया इसके अंदर, तो कितना 4 और 4 8 और प्लस 2 10 हो गया, 6 7 8 9 90. सो ये 90 जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा बेटा. डोंट टेक 90 हियर. 90 की जगह पे आप लोगों को क्या लेना है? हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मोलर मास लेना है. अंडरस्टूड? चलिए अब अपन, जैसे कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हमारे पास ऐसा कोई एपरेटस नहीं है लेबोरेटरी के अंदर जो डायरेक्टली मोलारिटी को मेजरमेंट कर सके या मेजर कर सके. तो हमें इस मोलारिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? इसका ग्राम के अंदर, कि इतने ग्राम हमें लेना है इतने लीटर वाटर के अंदर. तो वही वाला अपना सेम प्रोसेस रहेगा. कैसे करेंगे? हमें 4th नंबर पे निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. क्या रहेगा फॉर्मूला? मैंने बताया ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है. क्या करेगा बेटा? मोलारिटी इंटू मोलर मास. मोलारिटी इंटू मोलर मास. व्हाट इज मोलारिटी हियर? 1 upon 40. ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा दे रखा है. अब यहाँ पे भी मैंने लिख रहा है 1 upon 40, और मोलर मास कितना दे रखा है? 126. अंडरस्टूड? जब आप इसको पूरा काट देंगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 3.15 ग्राम पर मोल, सॉरी ग्राम पर लीटर. ग्राम पर लीटर. अंडरस्टूड? ये आ गया 3.15 ग्राम पर लीटर आ गया इसका. ओवरऑल कैंसिल करके देख लीजिए एक बार, वापस का वो निकाल के देख लेते हैं एक बार कि आंसर राइट है या रॉन्ग है. कैलकुलेशन में थोड़ा सा वेट. 126 डिवाइडेड बाय 40 is equal to 3.15. Understood? The right answer is correct. So 3.15 ग्राम पर लीटर is the strength of the oxalic acid. हमें इसका मतलब क्या हो गया बेटा? 1 लीटर डिस्टिल वाटर के अंदर 3.15 ग्राम आपको ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व करना है. तो हमारी मोलारिटी कितनी हो जाएगी? 1 upon 40 मोल पर लीटर. अंडरस्टूड? तो चलिए, हमारा क्वेश्चन में जो दे रखा है वो हमारा 100 ml में बनाने का. मैंने आपको कल मतलब पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि 100 ml की बजाय 250 ml भी दिया जा सकता है, 500 मिलीलीटर भी दे सकते हैं. यानी जो भी, अगर आपको वाई में पूछे बेटा 5000 ml में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो आपको यूनिटरी मेथड मैंने आपको बता रखा है. ठीक है, आज उसी मेथड को फॉलो करेंगे. क्या करना है? यूनिटरी मेथड हमारा कि 1000 ml में जो रिक्वायरमेंट है हमारी ऑक्सैलिक एसिड की वो कितनी दे रखी है? 3.15. ये तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया H2O, और ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सैलिक एसिड. अंडरस्टूड? सो in 1000 milliliter 3.15 ग्राम ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड इज रिक्वायर्ड. तो हमारे पास में कितना दे रखा है? 100 ml में आपको देना पड़ेगा x. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x इज इक्वल टू 0.315 ग्राम. ये हमारे पास में ग्राम पर 100 मिलीलीटर, ये हमारी क्वांटिटी आ गई. यानी हमें
जो आज का जो सोल्यूशन बनाना है उसमें हमें क्या करना है बेटा, 0.315 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड लेना है और उसको 100 मिलीलीटर पानी के अंदर डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है। डिस्टिल्ड वाटर को अपन डीआयोनाइज्ड वाटर भी बुलाते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट होता नहीं, इसलिए इसको अपन डीआयोनाइज्ड वाटर भी बोलते हैं और ये डिस्टिल्ड वाटर के नाम से भी बुलाते हैं इसके अंदर। सो टुडेज स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड इज 0.315 ग्राम पर 100 मिलीलीटर। ये हमें आज का टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है। आई होप यू ऑल क्लियर विद दिस। अगर आपको 100 ml की बजाय 250 दिया जाए तो आप क्या लिखोगे, इन 1000 मिलीलीटर 3.15 ग्राम इज डिसॉल्व्ड, सो इन 250 मिलीलीटर व्हाट क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड, x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 250 के हिसाब से आपको इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सैलिक एसिड बनाने का तरीका हो गया। इसका कैलकुलेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3, ठीक है। चलो अब सेकंड जो चीज आती है इसके साइड में ही बना लेता हूं, इसके अंदर बिना इरेज किए हुए। कैसे इसका सोल्यूशन बनाना है, थोड़ा डिफरेंट टाइप है। जैसे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि आपने मोर सॉल्ट मेजरमेंट किया था, देन हम लोगों ने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला था, हाइड्रोलिसिस से उससे बचाया था। आज ऐसा वैसा कुछ नहीं, आज सोल्यूशन बनाने के बाद में कुछ चेंजेस करने हैं हम लोगों को, ठीक है। तो क्या चीज है बेटा, सबसे पहले हमें वॉच ग्लास लेनी है। वॉच ग्लास के अंदर हमें ऑक्सैलिक एसिड मेजर करना है, ये हो जाएगा आपका ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड कितना हो गया बच्चे, 0.315 ग्राम, अंडरस्टूड। ये इसको मेजरमेंट किससे करेंगे, हम लोग करेंगे पेन बैलेंस, इलेक्ट्रिक बैलेंस हमारे पास में जो था उसको अपन मेजर करेंगे। नाउ दिस मटेरियल, दिस सॉलिड ऑक्सैलिक एसिड विल बी ट्रांसफर्ड इन दी राउंड बॉटम फ्लास्क। ये क्या है, राउंड बॉटम, सॉरी दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है। इसमें आपको देखोगे एक लाइन दे रखी है, पूरा एक सर्कल दे रखा है, पूरा एक सर्कल होता है पूरा, क्योंकि पूरा आपका एकदम सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो सिलेंडर के चारों तरफ एक सर्कल होगा इसमें, तो सर्कुलर स्कार बना रहेगा, एक पूरी लाइन नजर आती है इसके अंदर, सर्कुलर जो भी इसका प्रोसेस रहेगा इसमें, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें वही सेम प्रोसेस है, अपने फनल इंसर्ट करना है। फनल इंसर्ट करने के बाद में आप क्या करोगे, इस ऑक्सैलिक एसिड को इसमें सीधा ट्रांसफर कर देने का। जब आप इसको ट्रांसफर करोगे तो सारा ऑक्सैलिक एसिड अंदर आ गया। और जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को कि ऑक्सैलिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं, ये क्रिस्टल्स वॉच ग्लास पे भी चिपके रहेंगे, ये क्रिस्टल्स फनल के ऊपर भी चिपके रह सकते हैं। These crystals should be poured, these crystals should be there in the वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये सारा का सारा जितना भी क्रिस्टल है सारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में चले जाना चाहिए। तो उसको जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी आप लोगों को रिंस करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा। आपका जो ये फनल है इसको भी प्रॉपर्ली वॉश करना पड़ेगा, यानी रिंस करना पड़ेगा। सारे क्रिस्टल जो है वो आपके वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर चले जाने चाहिए। अगर पीछे कुछ क्रिस्टल बच गए तो आपकी मोलारिटी में फर्क पड़ जाएगा, मोलारिटी में फर्क पड़ेगा तो ओवरऑल रिजल्ट में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस है, हमने इसको अंदर डाल दिया और डाल करके यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे हाफ पानी से भर दीजिए पहले, और हाफ पानी से भरने के बाद में इसको प्रॉपर्ली इसको अच्छे से सोल्व करिए इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को। जब इसको सोल्व करेंगे या पूरा इसको रिवॉल्व करिए या हिलाएंगे पूरा अच्छे से, तो ये पूरा ऑक्सैलिक एसिड इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको इसमें कोई चेंजेस नजर आएंगे, द सॉल्यूशन जो बन रहा है वो पूरा ट्रांसपेरेंट का ट्रांसपेरेंट रहेगा। बिफोर डिसोल्यूशन एंड आफ्टर डिसोल्यूशन द कलर विल बी सेम। इज इट क्लियर? कोई हाइड्रोलिसिस किसी भी टाइप का कुछ भी नहीं होता है इसमें। देन आप इस फनल को बाहर निकाल देना बेटा, और निकालने के बाद में आपको यहां तक पानी से इसको भरना है, ठीक है। वही सेम बताया, आपकी आइज जो है वो यहां होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी आइज जो है इस जगह पे होनी चाहिए, अंडरस्टूड। ये पूरा आपकी आइज यहां होनी चाहिए, इसके सामने, इसके बिल्कुल सामने रहोगे तो क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि लोअर मेनिस्कस आया है या नहीं आया। अगर आपने ऊपर नीचे अगर देखा तो सोल्यूशन के अंदर क्वांटिटी में वेरिएशन आ जाएगा। उसको अपन पैरेलल एरर्स जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो वही सेम प्रॉब्लम रह सकती है। तो ये जो हमारा सोल्यूशन तैयार हुआ है वो कितना हुआ है बेटा, 100 मिलीलीटर में। अगर आपको टीचर 250 मिलीलीटर बोले यानी 250 मिलीलीटर बोले तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है वो कितना लेना पड़ेगा, 250 ml का। 500 ml बोले तो 500 ml का, 1 लीटर का बोले तो 1 लीटर का। तो वो डिपेंड करता है आपके पास में कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है या आपका जो एग्जामिनर है वो किस में बनाने के लिए बोल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। ये पूरा आपका सोल्यूशन बनाने का तरीका हो गया, यानी 0.315 ग्राम मेजर करोगे, देन ट्रांसफर करोगे इसके अंदर, फिर पानी भरेंगे, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में इसको लोअर मेनिस्कस से आपको यहां तक भरना है और आपका ये सोल्यूशन तैयार हो गया। नाउ दिस इज कॉल्ड एज योर स्टैंडर्ड सोल्यूशन।
स्टैंडर्ड सोल्यूशन। इसकी मोलारिटी, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी क्वांटिटी सब कुछ आप लोगों को पता है। और अब इसको यूज करते हुए हमें क्या करना है बेटा, हमें KMnO4 का मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको बना देते हैं। आ जाओ, तो अपने एपरेटिस की तरफ सारा देख लेते हैं कैसे क्या करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। 1 2 3 डन। ठीक है, कोई भी अगर आप लोगों को डाउट लग रहा हो या प्रॉब्लम लग रहा है तो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वहां पे कुछ भी अगर आपको अगर तकलीफ आ रही हो या कुछ भी अगर चेंजेस अगर आपको लग रहे हैं इसके अंदर, तो आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अपना आगे का प्रोसेस। सेम वॉच ग्लास है हमारे पास में, क्लीन कर लीजिए इसको अच्छे से। नाउ इसको स्विच ऑन कर दीजिए। सबसे पहले देख लीजिए ऑक्जेलिक एसिड हमारे पास में, ये हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड है। मोलर मास दे रखा है 126.07, हम 0.07 नहीं लेंगे इसमें। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा वॉच ग्लास। आई टोल्ड यू लाइक 19.75 तो वॉच ग्लास का मास है, हमें इसकी जरूरत नहीं, हमें इसको कर देना 10। ठीक है, अब हमें कितना लेना है 0.15। अब ये जो मेजरमेंट है इसका आप देख सकते हो पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल प्लेस तक ही मेजर करता है। तो हम इसको थोड़ा सा, जैसे 0.315 है ना, तो 31 के बाद में थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, 0.32 के आसपास अपन इसको ले लेंगे। ठीक है, ज्यादा हो गया थोड़ा। थ्री 1.5 लेना है इसमें, जरा ध्यान दीजिए। ये 0.31 हो गया और इसको 3.2 बना लेंगे। ठीक है, 0.32 अगर होगा तो 3.32, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट ये 0.32 के आसपास अपना रिजल्ट आ गया। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, ये ज्यादा फर्क नहीं है, 0.05 का इतना कुछ मायने नहीं रखता है। अब हमें ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना है, पहले इसको रिंस कर दीजिए अच्छे से। ये रिंस कर दिया आप लोगों ने, ऑलरेडी रिंस था बट सेफ्टी के लिए आप लोग इसको रिंस करना है। इसको भी आप अच्छे से रिंस कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट टास्क इज, इसको डाल दीजिए इसमें और ये सारा का सारा इसमें खाली कर दीजिए। ठीक है, इसको कर देते हैं स्विच ऑफ। देयर इज नो नीड ऑफ दिस वन, उस साइड। चलिए, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ये पूरा देखिए क्रिस्टल चिपके हुए इसके ऊपर, आप देख सकते हैं इसमें। अगर आपको देखना है तो ये क्रिस्टल देखिए पूरे प्रॉपर चिपके हुए, ये मोलारिटी चेंजेस हो सकती है इसमें। नाउ कर लीजिए अच्छे से, जो तरीका बताया था वही वाला, द होल प्रोसेस विल बी यूज्ड। कर दिया, द सेम प्रोसेस, इंसर्ट द कॉर्क और इसको अच्छे से सोल्ड करिए। ज्यादा इसको ऐसे ऐसे शेक नहीं करनी तो ये टूट जाएगा, ऐसे बड़ा बड़ा वीक है ये वाला स्टेम इसका। हो गया, ये देखिए ये डिसॉल्व हो गया पूरा तरीके से इसमें। सो बिफोर डिसोल्यूशन एंड आफ्टर डिसोल्यूशन द कलर रिमेन्स सेम, द ट्रांसपेरेंट, में कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि कोई भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं होती है। ऑक्जेलिक एसिड थोड़ा सा वीक एसिड है तो डिसॉल्व तो हो जाएगा इसमें, लेकिन जो आयोनाइज होएगा वो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है आयोनाइजेशन के अंदर। ये मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा, वही पैरेलल एरर हटाने के लिए देखिए इसको आमने सामने बैठना है। एक सेकेंड ना, तो डिस्टिल्ड वाटर थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेते हैं बेटा। चलिए यहाँ तक आया था सोल्यूशन, अब इसको कर देते हैं। ये आ गया आपका। ठीक है, थोड़े से आप लोगों को बबल्स नजर आएंगे इसमें, फ्रॉथ
बट इसका लोअर मेनिस्कस देख लीजिए इसमें, फिर इसको अप एंड डाउन करना है ताकि पूरा एजिटेशन हो जाए इसमें। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन पूरा बन के तैयार हो गया। दिस इज योर M/40 सोल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। चलिए अब आगे का टास्क करते हैं। प्रोसेस वही है सेम। सबसे पहले आप लोगों को इस ब्यूरेट को रिंस करना है। रिंस किससे करोगे? पहले वाटर से वॉश कर लीजिए इसको। इसको ओपन कर लो। चलिए थोड़ा ये भी डाल दीजिए ताकि पूरा प्रॉपर रिंस हो जाए। ये भी हो गया। थोड़ा वेस्ट होने दीजिए, कोई बात नहीं, ताकि रिजल्ट अच्छा निकले। फाइनली अब इसको आपको जैसे कि मैंने बताया, इसको थोड़ा लिफ्ट अप करना है और अपनी आईज को जीरो के सामने रखना ताकि आपको लोअर मेनिस्कस पता रहे। थोड़ा ज्यादा भरोगे, आप देख सकते हैं जीरो से ज्यादा लिया है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन है कि पहले तो ये आपका एयर बबल रिमूव करना पड़ेगा और सेकंड आपका आइस का लेवल के हिसाब से आपको इसको एडजस्ट करना। आप कर दीजिए इसको। यस, सो हमारी ब्यूरेट रेडी हो गई है। ब्यूरेट का पूरा जितना भी है वो सारा रेडी हो गया। चलिए अगला टास्क क्या बताया था मैंने, इसको कर दीजिए रिंस अच्छे से वापस। नाउ ट्रांसफर द ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन इन द स्मॉल बीकर ताकि आपको इसको सक करने में कोई तकलीफ नहीं रहे। ठीक है, ये हमारा देखना थोड़े से चेंजेस हैं आज के टाइम में, आज वाले इसमें। नाउ सक इट। सॉल्यूशन ये 10 ml भर दिया मैंने ब्यूरेट पीपेट के अंदर। ये इसका लोअर मेनिस्कस दिख रहा है प्रॉपर वाला। नाउ ट्रांसफर दिस थिंग इन दी कोनिकल फ्लास्क। ये हमने कोनिकल फ्लास्क में इसको ट्रांसफर कर दिया पूरा। कल मैंने अपने पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया था आपको कि आप पीपेट पंप भी यूज कर सकते हैं अगर आपकी स्कूल में अवेलेबल है तो। अदरवाइज हमारे पास में जो नॉर्मल तरीका है इसको मुंह से सक करके सीधा इसमें ट्रांसफर करने का। अगेन क्योंकि KMnO4 जो है वो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगा और ये जो टाइट्रेशन है ये भी आपकी रेडॉक्स टाइट्रेशन है। रेडॉक्स टाइट्रेशन KMnO4 की ऑक्सैलिक एसिड के साथ में, तो KMnO4 विल बी एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें करना क्या है, नेक्स्ट जो टास्क है ये हमारे पास में दिस विल बी योर टेस्ट ट्यूब। ये हमारा H2SO4 जो ऑलरेडी बनाया हुआ था। ठीक है, इसको कर दीजिए इसमें खाली अराउंड 3/4 या ऑलमोस्ट इतना कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। ये डाल दीजिए इसके अंदर। एक सबसे बड़ी बात बता देता हूं, इसके अंदर कुछ चेंजेस आपके हैं। अगर मैं डायरेक्टली इसके अंदर टाइट्रेशन करने की कोशिश करूंगा इसके अंदर तो 1 या 2 ड्रॉप में रीडिंग आ जाएगी। देखना चाहेंगे? देखिए, चलिए वापस इसको देखते हैं। 1 या 2 ड्रॉप में रीडिंग आ जाएगी इसके अंदर। मैंने हीट नहीं किया अभी तक। ये देखो आ गया, कलर आ गया। इसका मतलब ये तो रॉन्ग हो गया। आप देखो इसमें मुश्किल से 1 ml भी पूरा नहीं हुआ और ये रीडिंग आ गई, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए तो ये आपका 1 पे रीडिंग आ गई है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं बेटा अपन लोगों को। क्या चेंजेस करने हैं जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, ऑक्सैलिक एसिड की जो टाइट्रेशन KMnO4 के साथ में करवाते हैं तो इसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, पहली बात तो ये। दूसरा जो है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को लाने के लिए हमें बिफोर टाइट्रेशन इसको हीट करना पड़ेगा। इसको टाइट्रेशन करने से पहले इसको सबसे पहले क्या करोगे, हीट करोगे। और हीट कितना करना है आपको? 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। उससे ज्यादा हीट नहीं करना है, 60 to 70 डिग्री, ताकि इसका एक तो डिकम्पोजिशन पूरा हो जाए। किसका डिकम्पोजिशन? ऑक्सैलिक एसिड का पूरा डिकम्पोजिशन हो जाए। सेकंड क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी और रिएक्शन भी प्रॉपर्ली इसके अंदर हो पाएगी। और अपना Mn जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो कर रहा था, ठीक है ना, वो भी उसका अच्छे से रिडक्शन हो जाए इसके अंदर। तो मतलब आपकी रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है इसकी।
ठीक है ना। ये टेम्परेचर बनाने से इसके अंदर चेंजेस आते हैं इसके अंदर, तो आपको उस एनर्जी का जो वेरिएशन लाना पड़ेगा इसके अंदर। तो मैं इसको कर देता हूँ खाली, ठीक है। वापस ये प्रोसेस अपन लोगों को करना पड़ेगा, और नेक्स्ट जो टाइट्रेशन करने वाले हैं, सॉरी नेक्स्ट जो प्रोसेस करने वाले हैं वो हम हीट करके करेंगे। तो वापस आप देख लीजिए सब करके। तो आप लोगों को इसको कोल्ड में रिएक्शन नहीं कराना है, ठीक है। इसको करना है पहले 60 to 70 डिग्री सेल्सियस गर्म, और गर्म करने के बाद में गरम गरम को टाइट्रेशन करना है। इसके पीछे का रीजन आप लोगों को बता दिया। एक तो ये वीक एसिड है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थोड़ा कम है इसका, और इसको हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है रिएक्शन करने के लिए। ना जरा ध्यान देख लीजिए वापस से वही, ये आपका लेवल आ गया, ये लेवल आ गया, देख सकते हैं आप लोग ना। इसको ट्रांसफर कर देते हैं इसके अंदर पूरा एज इट इज, ये कर दिया मैंने इसके अंदर पूरा ट्रांसफर। अब इसमें आपको वही सेम प्रोसेस है, आप डालोगे H2SO4, क्या डालोगे H2SO4 डालना है, वही आप टेस्ट ट्यूब भर के इसमें H2SO4 डाल दीजिए। H2SO4 डाल दिया। चलिए अब आगे क्या करना है आपको, अब हीट करेंगे इसको। चलिए हीट करने के लिए ये हमारे पास ऑलरेडी तैयार है बर्नर, बिना वायर मेट के भी रख सकते हो आप लोग। वायर मेट में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बट नॉर्मली आपको इसको गर्म करेंगे और जितने ब्यूरेट को वापस भर देते हैं। Unit is ready now for titration. Now ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट 60 to 70। थोड़ा सा वेपर इसमें से दिखना शुरू हो जाएगा, हल्की हल्की वेपर दिखना शुरू हो जाएगा ना। फटाफट ला करके इसको, तो ध्यान रहे इसके अंदर आपका हाथ नहीं जलना चाहिए। बे टाइट्रेशन जो हो रही है देखिए, तो कलर जा रहा है इसको कोई, मैंने क्या बोला, परमानेंट इसका पिंक कलर आना चाहिए, लाइट पिंक, परसिस्टेंट पिंक कलर आना चाहिए, तभी आपका टाइट्रेशन परफेक्ट होगा। तो 0 से शुरू किया था मैंने, देखो कलर आ रहा है जा रहा है, कलर आ रहा है जा रहा है गर्म। एक बार इसका परमानेंट अगर पिंक कलर आ जाए तो इसका मतलब हमारा एंड पॉइंट आ जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि KMnO4 जो है वो सेल्फ इंडिकेटर है, इसको इसमें इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं। जैसे ही पूरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा KMnO4 अपना खुद का कलर शो कर देगा वहां, ठीक है। जैसे ही उसका ऑक्सीडेशन का काम खत्म हो जाएगा KMnO4 का, ये अपना कलर दिखाना शुरू कर देगा, और दैट इज व्हाई KMnO4 इज एक्टिंग एज सेल्फ इंडिकेटर, ठीक है। देखो कलर आने में ही है, जस्ट ध्यान दीजिए। ये देखो आ गया कलर, ठीक है। कितना अच्छा कलर आया, देखो बेबी पिंक जैसा कलर, ठीक है। ये रीडिंग दिखा रहा है आज अपने इसमें एग्जैक्ट 11 पे। कैमरा नजदीक लाके देखेंगे तो आपको 11 पे नजर आएगा, ये 11 पे आपको रीडिंग नजर आ रही है, ठीक है। ये 11 पे तो फर्स्ट रीडिंग हमारी, और ये कलर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड वाले के लिए। तो सेकेंड वाले के लिए हम लोग सबसे पहले ऑब्जर्वेशन टेबल बना देते हैं। मैं इसको कर देता हूँ इरेज, जस्ट अ सेकेंड। ये हो गया हमारा काम, चलिए उसको रहने देते हैं। देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है हमें, तो कितनी रीडिंग चाहिए अपन को, टोटल 3 रीडिंग। 3 से ज्यादा भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, डिपेंड करता है। मैंने आपको कल उसमें बताया था इसमें कि 100 ml आपका सोल्यूशन बना है, तो 10 के हिसाब से आपकी टोटल 10 रीडिंग हो सकती है अगर आप सारा परफेक्ट लेते हो। अदरवाइज आप 7 to 8 रीडिंग अच्छे से ले सकते हैं, 7 to 8 रीडिंग आप इसमें से प्रॉपर्ली निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए सीरियल नंबर 1 2 3,
ये हो जाएगा आप लोगों का इनिशियल रीडिंग मिलीलीटर में, ये हो जाएगा आप लोगों का फाइनल रीडिंग किसमें, मिलीलीटर में, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, डिफरेंस। दिस विल बी योर डिफरेंस। ठीक है, तो इनिशियली वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 0.0 मिलीलीटर, और अभी फर्स्ट रीडिंग कितने पे आई थी बेटा, 11.0 पे। तो डिफरेंस कितना हो गया, 11 में से 0 गया, 11.0 मिलीलीटर। नाउ सेकंड रीडिंग हम शुरू करेंगे 11.0 मिलीलीटर से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड। वापस से आपको अच्छे से इसको वॉश करना है, ये कर दिया मैंने वॉश। सेकंड आप इसको सक करेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये हो गया सेकंड के लिए, थोड़ा इसको कर दीजिए। ये हो गया हमारा टोटल सोल्यूशन इसमें, और अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा H2SO4, हमारा H2SO4 तो नहीं होगा, दिस विल बी H2SO, ये हमारा H2SO4 डाल के मैंने बताया था डायरेक्ट रीडिंग नहीं लेना है, क्योंकि इट रिक्वायर्स हाई एक्टिवेशन एनर्जी। अब सेकंड में इसको गर्म कर दीजिए वापस से, सेकंड टाइम में सेकंड रीडिंग के लिए भी गर्म करना है। स्टार्ट हमें 11 से करना है। ठीक है, थोड़ा होने दो गर्म इसको। देखो कल वाले में क्या चेंजेस थे, कल वाले के अंदर हमारा हाइड्रोलिसिस हो रहा था। कल मतलब जो हमने पहले वाला वीडियो किया था, मैंने पहला वाला जो वीडियो कल ही बनाया था, आज मेरा सेकंड वीडियो है, तो बार बार मेरे मुंह से कल कल निकल रहा है, इसका मतलब कल ही उसका शूटिंग हुआ है पूरा। तो जो पहले वाले वीडियो में मैंने मोर सॉल्ट लिया था, मोर सॉल्ट के अंदर आपको पता है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला था सोल्यूशन बनाते टाइम पीरियड हाइड्रोलिसिस से बचाने के लिए। आज हमें, और कल गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, आज वाले में क्या हो रहा है, हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा कोई हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो नहीं रही है। लेकिन आज हमें गर्म करना पड़ रहा है, क्योंकि गर्म करेंगे तो ही ये पूरे आयन डिसोसिएट हो पाएंगे, और अपना Mn जो है, मैंगनीज जो आयन है, वो पूरा अच्छे से ऑक्सीडाइज कर सकता है किसको, ऑक्सैलिक एसिड को। ठीक है, ये हमारा गर्म हो चुका है, आप देख लें इसमें अच्छे से। ये देखो इसमें वेपर्स निकलना शुरू हो गया है। अब वेपर्स, जैसे वेपर निकलते हैं आप थोड़ा सेफ्टी रखना। अगर आप लोगों को लगता है कि गर्म लग रहा है तो इसके ऊपर चारों तरफ आप पेपर भी आप इसको रैप कर सकते हो। अगर आपके पास अपना हैंकी है, हैंकी भी रैप कर सकते हो। आज ये शुरू करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। ये देखिए, ये हमारा फटाफट से इसमें रीडिंग ले लेते हैं सेकंड में। देखो चेंजेस आ रहे हैं, 11 से शुरू किया था हम लोगों ने। ऊपर नहीं देखना है हमें, इसमें देखना है कलर चेंजेस में। कलर चेंज पे ज्यादा ध्यान होगा, बिकॉज एंड पॉइंट इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड पॉइंट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो द टाइट्रेशन इज गोइंग ऑन। ब्यूरेट में जो मैंने भरा है वो है टाइट्रेंट, और जो नीचे जो चल रहा है इसमें कॉनिकल फ्लास्क में हो जाएगा टाइट्रेट। तो टाइट्रेट के अंदर टाइट्रेंट डाल रहा हूं, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कंटिन्यू हो जा रही है इसमें। चलिए ये हो गया भाई। थोड़ा प्रोसेस वैसा है, बट आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, एग्जाम में आप अच्छे से कर पाओगे, और रिजल्ट भी अगर परफेक्ट मिलेगा, और मार्क्स जो है वो भी अच्छे से आ जाएंगे इसमें। ये ध्यान रखना सर। देखो कलर आने भी है, ये कलर आ गया, कलर कितना अच्छे से, कलर एकदम क्रिस्टल पिंक जैसा कलर आ गया, एकदम क्रिस्टलाइन पिंक जैसा कलर। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये देख लीजिए रीडिंग कितने पे आ रही है, 22.3 पे आ रही है। सेकंड रीडिंग कितने पे आ रही है, 22.2 पे आ रही है। देख लीजिए आप आ करके, थोड़ा सा एक ड्रॉप ज्यादा चला गया है। ठीक है, फिर भी अपन लिख देते हैं यहाँ पे सेकंड रीडिंग जो आई है वो कितनी है ये बेटा, वो आई है हमारी 22.2 पे, यस 2 पे। तो अब इसका कितना हो रहा है, देखिए इसका आ गया 11.2 आ गया मिलीलीटर। अंडरस्टूड। 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 2 में से 0। ओके, थर्ड रीडिंग हम शुरू करेंगे 22.2 मिलीलीटर से। चलो शुरू करते हैं 22.2 से। वापस को देखिए, अभी भी कितना परमानेंट कलर आ गया अच्छे से। ये डाल दीजिए इसमें, इसको कर लीजिए वॉश अच्छे से।
ये हो गया हमारा अच्छे से वॉश। वापस से लास्ट टाइम में थर्ड टाइम अपन सब कर लेते, 3 रीडिंग लेनी है। फटाफट देख लेते हैं इसमें। ये थर्ड रीडिंग के लिए रेडी कर रहा हूं मैं सोल्यूशन। ये हो गया। Now third time solution has been taken. Now transfer this solution in the conical flask. ये भी हो गया हमारा टास्क कंप्लीट। Now सेकेंड अब में क्या करना है, H2SO4 डालना है। ये H2SO4 भी ले लीजिए इसमें। H2SO4 डाल देते हैं ये वाला। ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा है किसको, KMnO4। ये डाल दिया। इसके बाद डालने के बाद इसको फिर से अपन गर्म कर देते हैं। ये गर्म होने को है थर्ड रीडिंग। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। फिर बाद में इसका कैलकुलेशन करेंगे अच्छे से। कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग भी निकालनी हम लोगों को, तो उसमें डाल दिया जाए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ठंडे में अगर आप करने की कोशिश करोगे तो सिर्फ 1 मिलीलीटर में आपकी रीडिंग आ जाएगी, क्योंकि अब तो ऑक्सैलिक एसिड डिसोसिएट नहीं हुए थे और इसको हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हाई एक्टिवेशन के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, उसको गर्म करेंगे ताकि ये पूरा डिसोसिएट भी हो जाए, आयंस भी फ्री हो जाए और हमारा रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलिए ये हमारा होने को ही है कंप्लीट। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना बेटा कि यहाँ पे क्या चेंजेस करना है। ठीक है, मैं बता दूंगा उसमें। ठीक है, ये तो वेपर्स निकलना शुरू हो गया है। ये वेपर्स निकलना शुरू हो गया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं थर्ड टाइट्रेशन। थर्ड हम लोगों ने 22.2 से शुरू किया था बेटा। एक मैंने आपको चीज बताई थी बेटा, अगर आप फास्ट रीडिंग लेते हो और फटाक से एकदम से आप सारा सोल्यूशन पोर करके आप रीडिंग निकालते, उसको बोलते हैं पायलट रीडिंग। हमें पायलट रीडिंग नहीं लेते बेटा, हमें एक एक ड्रॉप की रीडिंग डालनी है इसके अंदर, एक एक ड्रॉप से रीडिंग लेनी इसमें, ताकि हमारा रिजल्ट बहुत ही प्रिसाइज आए और परफेक्ट रिजल्ट आए। ठीक है ना, और एक्यूरेट रिजल्ट आए इसमें। रिजल्ट आने नहीं है अपना। इसके बाद में हम ये 2 टाइट्रेशन अपनी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखो आ गया कलर, फर्स्ट क्लास कलर आया। रिजल्ट आ रहा है हमारा 33.2 पे। देख लीजिए रिजल्ट कहां पे आ रहा है, देखो 33.2 पे आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला जो ले रहे हैं हम लोग वो कितने पे आ रहा है बेटा, 33.2 पे आ रहा है। तो कितना हो गया देखिए, ये 0 हो गया और इसका हो जाएगा 11.0। ठीक है, वो पहले वाले में भी ऐसे ही कुछ हुआ था, देखो फर्स्ट और लास्ट में। आज भी देखो ये फर्स्ट और लास्ट में सिर्फ 0.2 का, यानी सेकंड वाले में 2 ड्रॉप ज्यादा गिर गए, इसलिए 0.2 मिलीलीटर थोड़ा ज्यादा शो कर दिया इसमें। लेकिन एक्चुअल में जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 11। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग। कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग, READING। कितनी आई बच्चों, 11.0 मिलीलीटर। यानी हमारा ब्यूरेट का जो फाइनल रीडिंग आया है वो है 11.0। ठीक है, अब इस कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग को लेकर के हम यूज करेंगे इसका मोलारिटी और अपना स्ट्रेंथ निकालने के लिए। तो इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे साइड में मैं आपके कर देता हूं। चलिए बंद कर देते हैं। नाउ हमें करना क्या है बच्चे, हमें आज नेक्स्ट जो निकालना है मोलारिटी निकालनी। मोलारिटी किसकी निकालोगे, KMnO4 की, यानी पोटेशियम परमैंगनेट की। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, M1V1 इज इक्वल टू क्या था, M2V2, और नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या थी, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो मोलारिटी भी निकाल सकते हो और नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हो, मोलारिटी से नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हो, n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया था ये इक्वेशन जो है मोलारिटी, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस किसके बेसिस पे, यानी इसके जो स्टोइचियोमेट्रिक नंबर्स हैं उन नंबर्स को आपको यूज करके और इस मोलारिटी इक्वेशन को एडजस्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि रिएक्शन कैसे होती है
वो ध्यान देना है। तो KMnO4 ले लीजिए, KMnO4 को आप किसके साथ रिएक्ट कराओगे, ऑक्सैलिक एसिड के। ऑक्सैलिक एसिड को शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, COOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O। अंडरस्टूड। इसके लिए आप ये 5 यूज करते हैं और इसके आगे क्या यूज करोगे 2, यानी 2 मोल आपके KMnO4 यूज आएगा और 5 मोल जो है आपका ऑक्सैलिक एसिड यूज आएगा। आगे की रिएक्शन तो आप लोगों को उसमें बुक में दे रखी है, ठीक है ना, वो आप देख लेना। उसके अंदर KMnO4 जो है Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगा और ऑक्सैलिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 मोल और ये 5 मोल। तो आपको पहले भी बता रखा है, फर्स्ट वाला आप ले लीजिए किसके लिए, KMnO4 के लिए, और सेकंड वाला क्या ले लीजिए आप लोग, ऑक्सैलिक एसिड के लिए। सो KMnO4 के आगे कितना लगा रखा है, स्टोइचोमेट्री नंबर 2, तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे M2V2 के आगे क्या लोगे बेटा, ये 5 था, इसको लगा देंगे 5। तो चलिए हमें आज क्या निकालना है, M1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2/5 M2V2 डिवाइडेड बाय V1। ये चेंजेस हो सकते हैं इसमें। M1 क्या चीज हो गया, M1 इज द मोलारिटी ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी KMnO4, ठीक है, जिसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। V1 क्या हो जाएगा, V1 ये वाली हमारी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग, यानी आपका ब्यूरेट रीडिंग, ब्यूरेट रीडिंग RUADING रीडिंग कितनी दे रखी है इसके अंदर, इसमें जो हमारी आ रखी है वो कितनी आई है, 11.0 मिलीलीटर। चलिए M2 कितना दे रखा है, M2 यानी मोलारिटी ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड, वो कितना है, मोलारिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, वो कितना है बच्चों, वो हो जाएगा हमारा 1/40 कैपिटल M, ओके। और V2 क्या हो जाएगा, V2 जो पेपेट में भरा है, कुछ लोग इसको पाइपेट के नाम से ही बुलाते हैं, एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन कैन बी डिफरेंट, PIPETT, पीपेट रीडिंग। पीपेट में कितना शक किया था बेटा आप लोगों ने, 10 मिलीलीटर, अंडरस्टूड। ये 10 मिलीलीटर वाली पीपेट हमारे पास में है इसमें, ठीक है। तो चलिए सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सारा। चलिए ये M1 हो गया, M1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू M2 कितना है बच्चों, 1/40, V2 कितना था आपका 10 यहाँ पे दे रखा है, और V1 हमारा कितना है बेटा 11.0। चलिए ये कर दीजिए, इससे काट दीजिए, ये कट गया ऐसे, ये हो जाएगा 2, तो 5 2 10, M1 कितना आ गया, M1 इज इक्वल टू 1/110, कितना आ गया, मोल पर लीटर, ये आ गया। मोलारिटी ऑफ द KMnO4 हमारी कितनी आ रही है, 1/110। इसको आप डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करोगे M1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.0091, ठीक है। वैसे तो इसकी कितनी आती है 0.00908, तो उसको राउंड ऑफ करके हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं 1, ये हो जाएगा मोल पर लीटर, और या फिर कैपिटल M के नाम से। आई होप यू अंडरस्टूड। मोलारिटी आ गई, इसको हम लोग बना देते हैं ब्रैकेट, स्विच ऑन, ये ब्रैकेट हमारी मोलारिटी, यानी हमारा फर्स्ट जो टास्क था मोलारिटी निकालने का, वो हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 निकालने की। तो कैसे निकालोगे स्ट्रेंथ, अगर नॉर्मलिटी निकालनी होती तो क्या कर देते, इसको KMnO4 के n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते, हमारा नॉर्मलिटी आ जाती, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। अच्छा अब अपन निकालेंगे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, स्ट्रेंथ किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, तो क्या हो जाएगा, मोलारिटी इनटू मोलर मास, मोलर मास ऑफ किसका, KMnO4। तो मोलारिटी कितनी दे रखी है बेटा 0.0091, और मोलर मास कितना दे रखा होता है 158 होता है KMnO4 का, ठीक है। तो अब इसका डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वही सेम रिजल्ट है, क्योंकि चेंजेस तो करे नहीं थे, ठीक है ना। एक सेकेंड मुझे दीजिए, कैलकुलेटर से कर लेते हैं इसमें, 0.0091 इंटू 158 कितना आ गया 1.437, 1.437 मतलब 1.14 आ गया इसमें, ठीक है। तो चलिए ये कर दीजिए 1.47 था, तो 1.144 कर देते ग्राम पर लीटर। क्या यूनिट आ जाएगी इसकी, ग्राम पर लीटर। पता है ना कैसे करना ग्राम पर लीटर, मोलारिटी का क्या था, मोल अपॉन लीटर, और इंटू इसका कितना था, ग्राम अपॉन मोल, तो मोल से मोल कैंसिल, हमारा कितना आ गया स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कितना आ गया 1.44 ग्राम पर लीटर। सो सेकेंड टास्क इज ऑल्सो कंप्लीटेड, स्ट्रेंथ निकालने का KMnO4 का, ठीक है। तो ये फाइनल हमारा रिजल्ट इसमें निकल चुका है। मेथड दोनों टाइट्रेशन का सेम ही है, बस फर्क क्या था, उसमें
हमें उसका हाइड्रोलिसिस बचाना था और गर्म नहीं करना था, और यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है लेकिन इसको गर्म करना पड़ेगा। ये दो चेंजेस है। बाकी अगर KMnO4 का कंसंट्रेशन और इसका स्ट्रेंथ जो है सेम अगर है तो दोनों के अंदर सेम रिजल्ट आएगा। थोड़े बहुत वेरिएशन आ सकते हैं रीडिंग के अंदर, बट फाइनल जो आंसर आएगा वो सेम आना चाहिए इसमें। अगर KMnO4 की स्ट्रेंथ सेम है, अगर अलग अलग कर दी तो दोनों टाइट्रेशन के अंदर रीडिंग्स अलग अलग हो सकती है इसके अंदर। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस टाइट्रेशन। अगर कोई भी तकलीफ हो, कोई प्रॉब्लम अगर आ रही हो इसके अंदर तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में वापस से कर सकते हैं कि कहाँ पे तकलीफ आई है, हम उसको सॉल्व करके पूरा अच्छे से बना सकते हैं इसमें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3। थैंक यू। एंड दिस अच्छा, इसको खत्म करने से पहले इसका प्रीकॉशन के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। क्या था प्रीकॉशन? सबसे पहले लिफ्ट अप करना है किसको, फनल को, ताकि एयर निकल जाए। सेकंड, हमारा जो ये एयर बबल जो था इसको रिमूव करना है, ये कॉर्क जो है वो टाइट होना चाहिए। हीट करते टाइम पीरियड में आपको डायरेक्टली टच नहीं करना है। हमें तो खैर आदत पड़ी हुई है तो हम कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। आप लोग तो इसके ऊपर रैप कर सकते हो कोई भी चीज का, ठीक है। हीटिंग 70 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। और बाकी जो छोटे मोटे जो आते हैं इसमें क्लीनलीनेस का ध्यान रखना, ठीक है। पानी जो यूज करे वो डिस्टिल वाटर यूज करना, ये सब आप लोगों को आपके स्कूल वगैरह बता दे, लेकिन हमारा जो मेन टास्क है यही हो सकता है। वाइवा क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है? वाइवा में एक तो गर्म क्यों करते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा H2SO4 क्यों डालते हैं इसमें, वो भी आपको बता दिया मैंने, ठीक है। एसिडिक मीडियम है अगर, और KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो भी आपको पता है। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूस कौन हो रहा है, KMnO4 हो जाएगा। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब के सब। अच्छा, मोलारिटी को नॉर्मेलिटी में चेंज करने के लिए क्या करोगे, तो आपको पता है मोलारिटी इनटू दी n फैक्टर ऑफ द KMnO4, तो आपका नॉर्मेलिटी में आ जाएगा और बाकी सारा चीज सेम रहेगा इसमें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट टुडे। ये हमारा सेकंड टाइट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसको जर्नल में कैसे लिखते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। जर्नल में दो पार्ट है, एक साइड में लाइन वाला पार्ट है और दूसरी साइड में आपका ब्लैंक वाला पार्ट है। तो ब्लैंक में क्या लिखना है, लाइन वाले में क्या लिखना है, बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। और कौन सा पेन यूज करना है, पेंसिल कहाँ पे यूज करनी है, कैसे करना है, वो सब अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरा इसका लिखने का तरीका सीखेंगे, ठीक है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है वीडियो, फिर हम नेक्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर सॉल्ट एनालिसिस, जो सबसे ज्यादा दिक्कत करता है बच्चों को, रिजल्ट नहीं आते उनके, तो रिजल्ट लाने के लिए हमारे पास में कुछ टिप्स है, वो सारे टिप्स मैं आपको इस अगले वाले वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू। एंड सब्सक्राइब कर ले जो लोग अभी तक, जिन लोगों ने नहीं किया। मेरा जो चैनल का नाम है कंपाउंड क्रॉनिकल्स। मैं राजेश कुमार आज तुम लोगों से विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।